25th anniversary of Shri Ram Mandir. There's a magazine that's been published, it will be out next week. And this is the beginning event, the Ram Leela play presented by students from our Bhavya class. Is choreographed and directed and produced by professional artists. And all of you that you will witness and see today was through the tremendous effort of 4 or 5 months of work. Ram Mandir has a long history, and although we're here on this site, Ram Mandir existed at least 12 years or 13 years prior to coming here. So the Mandir is close to 20 to 40 years old. That is just as old as I am. Wink, wink. And as such, we have come a long way where we have 2 generations. We have those who were children who now have children. And they are all still here in some way or the other. So this is a very momentous occasion for us at Ram Mandir. And we are thankful that all of you could take the time on a Friday evening when the weather is so good, when you could be out in the park or in your backyard and enjoy the cool breeze, that you are seated here in this cool, comfortable auditorium that we prepared for you. I would like to be very, very brief and only to say to you that we are very, very touched by your presence and we look forward to your participation over the next month. Ram Katha commences on Sunday night, 7 night, and we invite all of you to join us. There is the Bhajan Sammelan also scheduled, which many of the mandirs, or all of the mandirs were invited to participate. Some of them are already committed. Those events you will be aware of. The Sthapana or Ganesh Murti, if you have not seen it, before you leave, take a look. The area is not quite complete. We will start Ganesh Chaturthi Puja every month once this Sthapana is complete. So these are some of the updates coming for the next 6 months. There is also the welcoming of Ram Lala Murti. It is supposed to be installed in the month of July, but it's stuck in a port in Montreal somewhere. We don't know when it will be released. There is also commitment for a 50 feet Hanuman Murti to be placed in the front of this building, which is scheduled for early of next year. These are some of the new things happening in London. Let me hand over to the President of the Ram Mandir, Indira Sharma. Give her a big hand. Namaste everyone, and once again, welcome to all of you. As I said earlier, we are very proud, excited, nervous for our young people, and very happy to see so many of you come out to celebrate this wonderful occasion with our young people. Ram Mandir has been built on many, many families who have participated in making this dream of Ram Mandir come to fruition. And today it has been, I can tell you, it has secretly been my dad's dream, Pandit Sharma, to see Ram Leela done here at Ram Mandir, and every year he talks about it and it doesn't happen. This year, on our 25th anniversary, it's happening. So everything happens when it's at the right time. Today, before we begin our program, we also are focusing on our youths. You'll be seeing our youths performing at Ram Leela. We also have a music program, a dance program here at Ram Mandir. We have the School of Music and School of Arts. And today we have some young ladies who are very new to our stage, who will be doing a beautiful dance for us. And they've been taught by our teacher, Shamana Sharma. And they'll be doing our opening item. As every good show has to have a pre-show. So today we have our pre-show. We have our lovely young ladies doing a Bollywood dance. So please put your hands to welcome our students of our Bollywood dance class. And can we get the lights, please?
starstruck. Ladies and gentlemen, one more round of applause, please. And they are the youngest members right now of our music program, and this is their second time on stage. They were on stage earlier this month to celebrate their graduation and our recital. So, as I said earlier, families and friends, today is about our young people, and truly a full circle for Ram Mandir. Today our Ram Leela is produced by director Jay Bhavsar, and the rest of his team I will be introducing later. But Jay actually was part of Ram Mandir almost 25 years ago, and then all of a sudden he's here now on our 25th anniversary, producing and involved in directing this play. So look how life turns around. So this was meant to be. I don't want to take up too much time, but I want you to understand that the rest of our program, it is one continuous program. We have no break. It is 1 hour of performances by our young people, and we want you to sit, enjoy, and listen. Our performance today is going to be in Hindi, but there's English subtitles, so read. You need to read, you might need to multitask. Just like watching a Bollywood movie, for those of you who don't understand Hindi, you're going to look, listen, follow the actions, and read the subtitles, just like I do, okay? But you will enjoy. Most importantly, this is put on by our young people. They're not actors and actresses. They are young people of our community. They're your children. And they have worked very, very hard to make this production possible. So be proud. Show your pride by being patient, quiet, and being respectful of the performance today. We don't want to see anyone up with their cameras. We actually have 2 cameramen today who are here, who are specifically, their job is to record our performance today. We also have a film production company that is also filming as well. And we will live stream this for all families and parents who want to access this. So we don't want to see anyone out of their seats filming and trying to catch their kid who's wrong. Okay? You will get your pictures and you will see the video once we upload it on our live stream. At this time, ladies and gentlemen, I want to welcome you to Ram Mandir along with Sur Sadhana Music School, our production of Ram Leela. Jai Shri Ram! अद्भुत सी कथा सुनाते हैं। देव है जिसमें दानव भी वानर सेना से आपको मिलाते हैं। नल नील से भी, जटायु से भी, और बजरंग बली हनुमान से भी। माँ सीता और लक्ष्मण भी आए हैं। मिलिए आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से भी। श्री राम राम राम। भारतवर्ष के दक्षिण में लंका नाम का एक प्रदेश था। वहां का राजा अत्यंत ज्ञानी, अपार शक्तिशाली रावण था। रावण अपने अहंकार और शक्ति के मद में बुरे कर्म करता जा रहा था। उसने 10 दिशाओं पर अपना राज्य फैलाया हुआ था। उसके राज्य में प्रजा को किसी भी तरह का पूजा पाठ या अच्छा कर्म वर्जित था। रावण के पाप हर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उसके पापों से पीड़ित पूरी पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी।
नाम का एक प्रदेश था। अयोध्या के राजा दशरथ गुणों के भंडार और ज्ञानी राजा थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, रानी कैकेयी और रानी सुमित्रा। ये तीनों ही बहुत ही विनीत और श्रीहरि की भक्त थीं। दशरथ के राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। पूरी प्रजा संपन्न थी, हर तरफ समृद्धि और प्रसन्नता। किंतु राजा दशरथ के मन में एक दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, रानी कैकेयी से भरत और रानी कौशल्या से राम। उत्तर दिशा में स्थित मिथिला प्रदेश के राजा जनक अपने ज्ञान और न्याय के लिए जाने जाते थे। एक समय उनके राज्य में बड़ा ही भीषण अकाल पड़ा। महर्षि अष्टावक्र के कहने पर वो राज्य को अकाल से मुक्त करवाने के लिए खेतों में स्वयं हल चलाने पहुंचे। खेत में हल चलाते हुए उनका हल एक गड़े हुए मटके में अटक गया। जब उस मटके को बाहर निकाला गया तो उसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया और उसका नाम रखा सीता। रावण के पापों का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने राम और माता लक्ष्मी ने सीता के रूप में अवतार ले लिया था। समय बीतता गया और चारों भाई अयोध्या में बड़े होने लगे। चारों राजकुमार भिन्न भिन्न गुणों से संपन्न थे और उन सब में श्री राम सबसे अधिक तेजस्वी और सबके प्रिय थे। वहीं लक्ष्मण का सदा ही राम के प्रति अत्यंत प्रेम रहता था। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न में भी असीम अनुराग था।
कुछ समय में सभी बालकों को गुरु वशिष्ठ के साथ गुरुकुल भेज दिया गया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मन लगाकर गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। वहीं मिथिला नगरी में सीता और उनकी बहनें मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति भी अपने पिता राजर्षि जनक और माता सुनैना की देखरेख में बड़ी हो रही थी। चारों बहनों में भी अत्यधिक प्रेम था। एक दिन सीता अपनी बहनों के साथ खेलते हुए पूजा घर जा पहुंची। वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा धनुष देखा। उस धनुष पर धूल जमी हुई थी। ये देखकर सीता ने उस धनुष को उठाया और उसे साफ करके वापस रख दिया। वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। वो भगवान शिव का महाधनुष पिनाक था, जो राजा जनक के पूर्वजों को देखरेख के लिए दिया गया था। राजा जनक और सुनैना भी संयोग से उसी समय पूजा घर में आए थे। राजा जनक ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जो कोई भी वीर पुरुष इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी सीता के लिए सुयोग्य वर होगा। कुछ वर्षों पश्चात अयोध्या के चारों राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके गुरुकुल से वापस अयोध्या आए और अयोध्या में पूरी प्रजा और सभी माताओं ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अभी राजकुमारों को अयोध्या आए कुछ ही समय हुआ था कि अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को बताया कि कई वर्षों से आसुरी शक्तियां बहुत प्रबल हो गई हैं और ऋषि मुनियों की साधना और हवन कार्यों में बाधा डाल रही हैं। उन्होंने दशरथ से उनके पुत्रों राम और लक्ष्मण को साथ भेजने का आग्रह किया। महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ के साथ विचार विमर्श किया और राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अनेकों सिद्धियां और महाअस्त्र प्रदान किए। अभी वो सभी आश्रम पहुंचे ही थे कि ताड़का नामक भयंकर राक्षसी ने आक्रमण कर दिया। राम ने ताड़का से युद्ध किया और उसका अंत करके सभी साधु जनों के कष्ट दूर कर दिए। अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को मिथिला चलने का आदेश दिया, जिससे वो दोनों भगवान शिव के धनुष पिनाक के
के दर्शन पा लें। मिथिला के मार्ग में उन सभी को गौतम ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वहां पर एक स्त्री रूपी शिला को देखकर महर्षि विश्वामित्र ने राम को बताया कि ये माता अहिल्या हैं, जो एक श्राप के कारण पत्थर की हो गई है। राम ने माता अहिल्या को नमन करने के लिए स्पर्श किया तो माता अहिल्या श्राप मुक्त होकर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गई। वहीं मिथिला में सीता अब विवाह योग्य हो चुकी थी। सीता के स्वयंवर का न्योता चारों दिशाओं में युवराज और राजाओं को भेजा गया। महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण जब मिथिला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिथिला नगरी सजी हुई है, क्योंकि मिथिला सीता के स्वयंवर के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही महाराज जनक को महर्षि विश्वामित्र के आगमन का ज्ञान हुआ तो वो उनसे मिलने आए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से सीता के स्वयंवर में आने का अनुरोध किया और राम एवं लक्ष्मण को भी साथ में लाने के लिए आग्रह किया। महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वाटिका से पूजा के लिए कुछ पुष्प लाने भेजा। संयोग से सीता भी तभी अपनी बहनों के साथ मां गौरी के मंदिर जा रही थी। वाटिका में सीता ने राम को और राम ने सीता को जब देखा तो दोनों के मन में एक दूसरे की जैसे छवि सी बन गई और फिर सीता ने मां गौरी की पूजा करते हुए मन ही मन राम को अपने जीवन साथी के रूप में मान लिया। अगले दिन जब स्वयंवर का आरंभ हुआ तो स्वयंवर की चुनौती को पूरा करने एक एक करके बहुत से वीर भगवान शिव के उस महाधनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे आए, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। जब महाराज जनक ने ये देखा तो वो बड़े दुखी मन से सभा में बोले कि अगर मुझे ये पता होता कि इस धरती से वीर समाप्त हो गए हैं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेता। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरी पुत्री से विवाह के योग्य हो? क्या ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? तब लक्ष्मण गुस्से में उठे और बोले कि जब सभा में सूर्यवंशी बैठे हों महाराज जनक तो ऐसी अपमानजनक बातें नहीं कहते। यदि मेरे भैया मुझे अनुमति दें तो मैं इस धनुष को अभी छिन्न भिन्न कर दूं। तब महर्षि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करते हुए राम को राजा जनक की चुनौती पूर्ण करने का आदेश दिया। राम तब आसन से उठे और नियति को पूरा करने महादेव के धनुष पिनाक के सम्मुख आए। राम ने उस महाधनुष को नमस्कार किया और
जैसे ही उन्होंने उस धनुष को हाथ लगाया तो जैसे वो धनुष स्वयं ही उठ गया, और जब राम ने उसको उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो प्रत्यंचा चढ़ाते हुए वो धनुष एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। जब वो धनुष टूटा तो ऐसी गर्जना हुई जैसे मानो प्रलय आ गई, और तभी दरबार में भगवान परशुराम का आगमन हुआ। भगवान परशुराम ने सभा में सबसे पूछा कि ये घोर अनर्थ किसने किया है, किसने मेरे आराध्य शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है। तब लक्ष्मण उठकर सामने आए और उन्होंने कहा कि ऋषिवर, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कितने ही तोड़े हैं, तब तो कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, फिर इस छोटे से धनुष पर इतनी ममता क्यों? ये पुराना धनुष तो स्पर्श मात्र से ही टूट गया। तो परशुराम ने कहा कि वो दंड बालक क्यों अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहा है, शिव धनुष को अन्य धनुषों के समान बता रहा है। अरे जनक, पता कौन है वो अधर्मी जिसने ये कृत्य किया है, वरना तेरे पूरे राज्य का विनाश कर दूंगा। तब राम उठकर सामने आए और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, यह अपराध मुझसे हुआ है, आप मुझे क्षमा कर दें। और जब भगवान परशुराम ने राम के अंदर विष्णु के अवतार के होने का आभास किया तो उनका पूरा शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया, और वो श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर वहां से चले गए। प्रभु राम और सीता के स्वयंवर का संदेशा अयोध्या भिजवाया गया, और फिर दशरथ के साथ भरत और शत्रुघ्न भी मिथिला पहुंचे, और वहां पर राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात चारों युवराज और पुत्र वधुएं अयोध्या पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सभी माताओं ने उनकी आरती उतारी और पूरी प्रजा ने खुशियां मनाई। कुछ ही दिन बीते थे कि महाराज दशरथ को अपनी बढ़ती हुई आयु का आभास हुआ, और उन्होंने राम को राजा घोषित करने का विचार राजगुरु वशिष्ठ और अपने पूरे मंत्रिमंडल से व्यक्त किया। मंथरा ने जब यह सुना तो उसने अपनी कुटिल बुद्धि से एक योजना बनाई, और वो महारानी कैकेयी के पास पहुंची और उनसे बोली कि महारानी, आपने सुना महाराज दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया है। कैकेयी ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मेरा राम राजा बनेगा। ये उपहार तुम्हारे लिए। तो मंथरा ने कहा कि रानी, ये उपहार आप अपने पास ही रखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब राम राजा बनेगा तो वो अपनी माँ कौशल्या को राजमाता बनाएगा, और आप एक दासी की भांति पूरे महल में यहाँ से वहां भटकेंगे। किंतु यदि भरत राजा बनेगा तो आप यहाँ की राजमाता बनेगी। मेरा क्या है, मैं तो आज भी दासी हूं और कल भी दासी ही रहूंगी। कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई।
जब महाराज दशरथ तक यह समाचार पहुंचा तो वो कैकेयी से मिलने उनके भवन में आए और बोले कि क्या हुआ महारानी कैकेयी, आप हमसे रुष्ट क्यों हैं? कैकेयी बोली, महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वरदान दिए थे? मुझे वो दोनों वरदान आज ही चाहिए। पहला वरदान, आप राजा मेरे पुत्र भरत को बनाएंगे, और दूसरा वरदान कि आप राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेज देंगे। जब दशरथ ने यह सुना तो उनके हाल ऐसे हो गए जैसे उनके प्राण ही निकल गए हैं, और वो बोले कि कैकेयी, यह तुमने क्या मांग लिया? राम मेरी श्वास, मेरे प्राण है, तुमने तो मुझसे मेरे प्राण ही मांग लिए कैकेयी। वहीं राम को जैसे ही माता कैकेयी की इच्छाओं का पता चला तो वो तुरंत वनवासी वस्त्र पहनकर वनवास जाने की आज्ञा लेने आ जाते हैं। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ वन जाने का आग्रह करते हैं। सभी माताओं और महाराज दशरथ का आशीर्वाद लेकर राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। अयोध्या से निकलकर जब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी भेंट केवट से होती है। प्रभु राम केवट से नदी पार कराने का आग्रह करते हैं और केवट उनके पैर पखारने का अनुरोध करते हैं। प्रभु राम के पैर धोने के पश्चात केवट उन्हें नदी पार कराते हैं, और जब प्रभु राम ने नदी पार करने के पश्चात केवट को मुद्रिका देनी चाहिए तो केवट ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन पाकर ही मेरा उद्धार हो गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अयोध्या में राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, और वहीं कुछ समय पश्चात जब भरत अयोध्या पहुंचे तो उन्हें माता कैकेयी के षड्यंत्र का बोध हुआ, और भरत क्रोध में बोले कि आपने ये क्या अनर्थ कर दिया माता, आपने अपने स्वार्थ में एक माता का पद कलंकित कर दिया। ये राज्य भैया राम का है और इस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। ऐसा कहकर भरत राम को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरी प्रजा भी उनके साथ ही चल पड़ती है। कैकेयी को भी पश्चाताप होता है और वो भी भरत और पूरी प्रजा के साथ राम को वापस लाने निकल पड़ती है। राम को खोजते हुए सभी भरत के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं और वहां वो प्रभु राम से मिलते हैं। भरत राम को महाराज दशरथ के देहांत का समाचार सुनाते हैं और प्रभु राम से अयोध्या वापस लौटने का आग्रह करते हैं। कैकेयी भी राम से क्षमा मांगते हुए अयोध्या लौटने का आग्रह करती हैं, किंतु राम कहते हैं कि पिता के वचनों का पालन करना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं वनवास पूर्ण करके ही अयोध्या आऊंगा। तब भरत राम की चरण पादुका लेकर अन्य सभी के साथ अयोध्या लौट जाते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण वन में भ्रमण करते हुए पंचवटी पहुंचकर एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगते हैं, और एक दिन वहां पर रावण की बहन शूर्पणखा पहुंचती है। वो राम के रूप को देखकर मोहित हो जाती है, और जब वो राम को विवाह का प्रस्ताव देती है तो राम उसे बताते हैं कि वो विवाहित हैं।
और उन्होंने एक ही पत्नी का वरण करने का वचन लिया हुआ है। राम से लक्ष्मण को विवाह प्रस्ताव देने के लिए कहते हैं और जब शूर्पणखा लक्ष्मण को प्रस्ताव देती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि देवी, मैं तो अपने भैया और भाभी सीता का दास हूं, मुझसे विवाह करेंगी तो आपको भी सेविका बनना होगा। यह सुनकर रावण की बहन शूर्पणखा सीता पर आक्रमण कर देती है। तब सीता की रक्षा करते हुए लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण के पास पहुंची और उसने रावण को बताया कि कैसे दो वनवासी भाइयों ने शूर्पणखा की नाक काट दी। उसने ये भी बताया कि उन वनवासी भाइयों के साथ एक अद्वितीय विश्व सुंदरी है और उसका नाम है सीता, जिसे रावण के महलों की शोभा होना चाहिए। देवी सीता के रूप के बारे में सुनकर रावण शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गया। रावण ने मारीच के साथ मिलकर सीता के हरण की एक योजना बनाई। मारीच अत्यंत मायावी था। वो एक स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी में सीता के सम्मुख आया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई और प्रभु राम से उस मृग को पकड़कर लाने का आग्रह किया। राम ने लक्ष्मण से सीता का ध्यान रखने के लिए कहा और स्वयं उस मृग को पकड़ने के लिए चले गए। कुछ ही देर बाद राम के चिल्लाने की आवाज आई और सीता विचलित होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने का आदेश देती है। लक्ष्मण सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं। और सीता को उस रेखा के अंदर रहने का आग्रह करते हैं और फिर वहां से राम की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। तभी वहां रावण एक साधु के भेष में आकर भिक्षा मांगता है। सीता उसे लक्ष्मण रेखा के भीतर से भिक्षा देने का प्रयास करती है तो रावण क्रोध करने का दिखावा करता है। सीता साधु को रुष्ट ना करने के भय से लक्ष्मण रेखा से बाहर आ जाती है और रावण सीता का हरण कर लेता है। जब रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की ओर निकलता है तो पक्षीराज जटायु सीता की रक्षा के लिए रावण पर आक्रमण कर देते हैं। रावण और जटायु में भीषण युद्ध होता है और जटायु घायल अवस्था में धरती पर गिर जाते हैं और फिर रावण सीता को लेकर लंका की ओर चला जाता है। मारीच के पीछे भागते हुए जब मारीच राम की आवाज में सीता को और लक्ष्मण को बुलाता है तो राम को ज्ञात होता है कि मारीच एक मायावी है और वो मारीच का अंत कर देते हैं। तभी वहां लक्ष्मण आते हैं और राम को किसी अहित के होने का आभास होता है। राम और लक्ष्मण तुरंत दौड़ते हुए कुटिया लौट आते हैं और जब वहां पर सीता को नहीं देखते तो वो दोनों बहुत व्यथित होकर वन में सीता को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वन में सीता को ढूंढते हुए उन्हें घायल जटायु मिलते हैं जो उन्हें सीता के हरण का हाल बताते हैं
किंतु इससे पहले कि जटायु यह बताते कि रावण सीता को कहां लेकर गया है, जटायु की मृत्यु हो जाती है। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण को मतंग ऋषि का आश्रम मिलता है, जहां उनकी भेंट माता शबरी से होती है। शबरी कई वर्षों से प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही थी और प्रत्येक दिन सुबह सुबह अपनी कुटिया सजाया करती थी। प्रभु राम से मिलते ही माता शबरी के नैनों से प्रसन्नता के अश्रु बहने लगते हैं। शबरी ने प्रभु राम को ऋषिमुख पर्वत की दिशा बताई और कहा कि उन्हें वहां पर जाकर महाराज सुग्रीव से भेंट करनी चाहिए। किष्किंधा से निष्कासित किए जाने के पश्चात सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। राम और लक्ष्मण जब ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत की चोटी से उन्हें देखकर सुग्रीव ने सोचा कि बाली ने सुग्रीव का वध करने के लिए योद्धा भेजे। सुग्रीव ने तब अपने परम मित्र और मंत्री हनुमान को उन दोनों का भेद जानने के लिए भेजा। हनुमान जब राम और लक्ष्मण के पास आए तो उन्होंने राम और लक्ष्मण से पूछा कि आप दोनों सुंदर युवक कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तब लक्ष्मण ने कहा कि ये मेरे भैया और दशरथ नंदन राम हैं और मैं इनका सेवक और अनुज लक्ष्मण हूँ। हम माता सीता का पता लगाने आए हैं। जब हनुमान को पता चला कि यह स्वयं श्री राम हैं, तो वह बोले, प्रभु आप प्रभु राम हैं, ताड़का को मारने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले मेरे प्रभु राम हैं आप। प्रभु मैं आपका अनन्य सेवक हनुमान हूं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान फिर राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाते हैं और उनकी मित्रता कराते हैं। सुग्रीव राम को बताते हैं कि कैसे उनके भाई महाबली बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और सुग्रीव की पत्नी को बंधक बनाकर रख दिया। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वो बाली का अंत करेंगे और सुग्रीव को न्याय दिलाएंगे। एक वरदान के कारण बाली जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। इसीलिए भगवान राम ने बाली का अंत करने के लिए एक योजना बनाई और सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए भेजा। किंतु राम बाली और सुग्रीव में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे थे। सुग्रीव को जब बाली का पलड़ा भारी होता दिखाई दिया तो वो वहां से भाग आया। प्रभु राम ने अगले दिन सुग्रीव को एक पुष्पमाला पहनाकर फिर से बाली से युद्ध करने भेजा और इस बार प्रभु राम ने बाली पर तीर चलाकर बाली का अंत कर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। अपने अंत समय में बाली ने सभी पापों के लिए सुग्रीव और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी और अंगद को अपने भाई सुग्रीव की रक्षा में छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। राम ने महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक किया और उसके बाद महाराज सुग्रीव ने चारों दिशाओं में अपने वानरों के दल भेजे माता सीता का पता लगाने के लिए। दक्षिण दिशा में जामवंत, अंगद और हनुमान अन्य वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उनकी भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति ने उन्हें बताया कि माता सीता समुद्र पार लंका में है।
समस्या यह थी कि 100 योजन का समुद्र पार करके लंका तक कौन जाएगा। माता सीता तक संदेशा भी पहुंचाना था। सभी वानर और जामवंत अपनी अपनी क्षमता बताते हुए कहते हैं कि समुद्र पार करके लंका तक जाना और फिर से वापस आना असंभव कार्य है। तब जामवंत इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि अब वो समय आ गया है जब हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया जाए, क्योंकि हनुमान ही वो महाबलशाली हैं जो ये कार्य कर सकते हैं। जामवंत ने पवन सुत को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया और हनुमान 100 योजन की छलांग लगाकर लंका पहुंचे। हनुमान जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। किंतु जब हनुमान ने उसे ये बताया कि वो प्रभु राम के दूत हैं और माता सीता को खोजने आए हैं, तब लंकिनी को यह आभास हुआ कि रावण का अंत समय आ गया है। लंकिनी वहां से चली गई और हनुमान लंका में प्रवेश कर गए। जब हनुमान लंका में प्रवेश करते हैं तो वहां घूमते हुए उन्हें एक घर में राम नाम की गूंज सुनाई देती है। हनुमान चकित होकर वहां पहुंचते हैं। तब उनकी भेंट विभीषण से होती है। विभीषण जय श्री राम का नारा लगाते हैं और फिर हनुमान को माता सीता के अशोक वाटिका में होने का समाचार देते हैं और हनुमान को अशोक वाटिका का मार्ग भी बताते हैं। हनुमान जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रावण अपनी रानी मंदोदरी और अन्य सेविकाओं के साथ वहां आ रहा है। तो हनुमान लघु रूप बनाकर वहीं एक पेड़ पर छुप जाते हैं। रावण वहां आकर सीता को विवाह प्रस्ताव देता है और सीता उसका विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है और उससे कहती है कि रावण प्रभु राम की शरण में चला जाए। रावण क्रोध में सीता को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मंदोदरी उसे यह कहकर रोक देती हैं कि स्त्री पर शस्त्र उठाना रावण जैसे ज्ञानी और वीर को शोभा नहीं देता। रावण फिर सीता को 1 माह की अवधि में विवाह प्रस्ताव या फिर मृत्यु को स्वीकार करने की घोषणा करके वहां से चला जाता है। जब रावण वहां से चला जाता है तब हनुमान पेड़ के पीछे से बाहर आकर सीता जी के सामने आते हैं अपने लघु रूप में और सीता जी को प्रभु राम की मुद्रिका देते हैं और फिर सारी कथा विस्तार से बताते हैं। हनुमान सीता माता से कहते हैं कि प्रभु राम सारी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करके सीता माता को लेने आ रहे हैं। जब सीता माता उनसे पूछती हैं कि क्या सभी वानर इतने छोटे ही हैं, तो वो सीता माता से अपने नेत्र बंद करने का आग्रह करते हैं और जब सीता माता नेत्र खोलती हैं तो हनुमान उनके सामने अपने विशाल रूप में आ जाते हैं। सीता माता को विश्वास हो जाता है कि अब लंका का अंत निश्चित है। वो हनुमान को अपनी चूड़ामणि देती हैं और हनुमान उनसे विदा लेते हैं। हनुमान जी को भूख लगी होती है, इसीलिए सीता माता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में लगे फलों को खाते हुए वहां पर लगे वृक्षों को तोड़ देते हैं।
जब अशोक वाटिका के राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया, तब हनुमान जी ने बड़ी आसानी से उन्हें मारकर वहां से भगा दिया। रावण को जब अशोक वाटिका में हो रहे कोलाहल का पता चलता है तो वो मेघनाद को भेजता है। मेघनाद हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान स्वयं ही उसमें बंध जाते हैं और मेघनाद के सैनिकों के साथ रावण के दरबार तक चले जाते हैं। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाया जाता है। हनुमान जी वहां पर सभी को बताते हैं कि वो प्रभु राम के दूत हैं और रावण ने माता सीता का हरण करके एक बहुत ही घोर पाप किया है। हनुमान रावण से कहते हैं कि वो माता सीता को ससम्मान वापस लौटा दे और प्रभु राम से क्षमा मांग ले। ये सुनकर क्रोध में रावण हनुमान को मारने का आदेश देता है, किंतु विभीषण उसको समझाते हैं कि दूत को मारना उचित नहीं है। तब रावण अपने सैनिकों को हनुमान की पूंछ में आग लगाकर वहां से भगा देने को कहता है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए सैनिक कपड़ा और तेल हनुमान जी की पूंछ में लगाने लगते हैं। जैसे जैसे सैनिक कपड़ा और तेल लगाते जाते हैं, हनुमान जी अपनी पूंछ और लंबी करते जाते हैं। कुछ देर में लंका का सारा कपड़ा और सारा तेल समाप्त हो जाता है। अब जब सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं तो हनुमान जी अपना रूप छोटा करके उछल उछल कर पूरी लंका में आग लगा देते हैं और लंका का दहन हो जाता है। लंका का दहन करके हनुमान जी माता सीता की चूड़ामणि लेकर वहां से प्रस्थान करते हैं। माता सीता का पता लगाने के बाद सभी वानर किष्किंधा वापस आते हैं और हनुमान माता सीता की चूड़ामणि प्रभु राम को देते हैं। माता सीता की चूड़ामणि देखकर प्रभु राम के नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। प्रभु राम हनुमान को गले लगाकर कहते हैं, हनुमान, आज से सब यह जानेंगे कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। वहीं लंका में विभीषण ने बार बार रावण को माता सीता को लौटाने का और प्रभु राम से क्षमा मांगने का आग्रह किया। तब रावण ने क्रोध में विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण बड़े दुखी मन से प्रभु राम के पास आता है। हनुमान विभीषण को पहचान लेते हैं और सभी को विभीषण और हनुमान की लंका में हुई भेंट का हाल बताते हैं। राम विभीषण को अपनी शरण में ले लेते हैं और वहीं पर विभीषण का राज्याभिषेक करते हुए उसे लंका का राजा घोषित कर देते हैं। जब पूरी वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची तो सबसे विशाल समस्या यह थी कि 100 योजन के समुद्र को पूरी सेना पार कैसे करेगी। तब राम ने समुद्र देवता का आह्वान करने का निश्चय किया, किंतु जब कई दिनों की प्रार्थना के बाद भी समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, तब क्रोध में राम ने आग्नेयास्त्र से समुद्र के जल को सुखा देने की घोषणा की। समुद्र देवता ने तब प्रकट होकर राम को बताया कि वानर सेना में 2 कुशल शिल्पी हैं, नल और नील। वो समुद्र पर पुल बांधने में सक्षम हैं। तब पूरी वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाने का कार्य प्रारंभ किया और देखते ही देखते एक विशाल पुल का निर्माण हो गया।
प्रभु राम अपनी पूरी सेना को लेकर समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं। युद्ध को टालने और संधि करने की चेष्टा करते हुए राम ने अपने मंत्रियों की सहमति से अंगद को संधि प्रस्ताव लेकर रावण के पास भेजा। जब अंगद ने रावण के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा तो रावण ने कहा कि संधि प्रस्ताव कायर देते हैं, वीर युद्ध करते हैं, युद्ध। अंगद ने तब रावण के दरबार में बैठे सभी वीरों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि किसी ने भी अंगद का पैर धरती से हिला दिया तो प्रभु राम युद्ध किए बिना ही वापस लौट जाएंगे। रावण के दरबार के सभी वीरों ने अंगद का पैर हिलाने का प्रयत्न किया, किंतु अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। तब रावण अपने आसन से उठकर अंगद के पास आया और जब उसने अंगद का पैर हिलाने का प्रयत्न करना चाहा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और कहा कि यदि पैरों को स्पर्श करना है तो प्रभु राम के पैरों को स्पर्श करके क्षमा मांग। और इस प्रकार राम और रावण के युद्ध की दुंदुभी बज जाती है। राम और रावण की सेना का भयंकर युद्ध शुरू होता है। दोनों दल बहुत बलवान थे और एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। फिर रावण पुत्र मेघनाद युद्ध करने आता है। मेघनाद और लक्ष्मण का अति भयंकर युद्ध होता है। और मेघनाद लक्ष्मण को वीर घातिनी शक्ति मारकर मूर्छित कर देता और मूर्छित लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की चेष्टा करता है, किंतु वो लक्ष्मण को हिला तक नहीं पाता। जब लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार राम तक पहुंचता है तो राम और अन्य जन व्याकुल लक्ष्मण के समीप जाते हैं। लंका से राजवैद्य सुषेण आते हैं और बताते हैं कि लक्ष्मण का उपचार हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी से ही संभव है। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर आकाश मार्ग से प्रस्थान करते हैं और जब हिमालय में उन्हें संजीवनी बूटी पहचान नहीं आती तो एक विशाल रूप धरकर पूरा का पूरा पहाड़ ही उठाकर लंका ले आते हैं। राजवैद्य सुषेण लक्ष्मण का उपचार करते हैं और लक्ष्मण उठ जाते हैं। प्रभु राम प्रसन्न होकर हनुमान को गले लगा लेते हैं। अगले ही दिन एक बार फिर से लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होता है। यह युद्ध मेघनाद के यज्ञ स्थल पर होता है जिसका मार्ग विभीषण ने बताया होता है। वहां पर मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध बड़ा ही भयानक होता है। अंत में लक्ष्मण मेघनाद का वध कर देते हैं। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात रावण कुंभकर्ण को उठाता है और कुंभकर्ण को युद्ध में भेजता है। कुंभकर्ण बड़ा ही विशालकाय और बलशाली था। वो जब युद्ध के मैदान में आता है तो हर तरफ हाहाकार मच जाता है। हनुमान और लक्ष्मण कुंभकर्ण से युद्ध करते हैं किंतु उसे मार नहीं पाते और फिर प्रभु राम स्वयं युद्ध मैदान में आते हैं। प्रभु राम कुंभकर्ण के शरीर के अंग अपने तीरों
कुंभकर्ण पृथ्वी पर गिर जाता है तब वो उसका अंत कर देते हैं। रावण को जब कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वो क्रोध में स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आता है। राम और रावण का बड़ा ही भीषण युद्ध होता है। और राम जब रावण पर प्रहार करते हैं तो रावण मृत होने के बाद बार बार जीवित हो जाता है। तब राम विभीषण से पूछते हैं कि ये कैसी माया है, और विभीषण प्रभु राम को बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत कुंड विद्यमान है। पहले रावण की नाभि में बाण मारकर अमृत को सुखाना होगा, उसके बाद रावण का अंत होगा। इस तरह प्रभु राम अपने ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत करते हैं। असत्य पर सत्य की विजय होती है, बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। 14 वर्षों के वनवास के बाद प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या में उनका बड़ा ही भव्य स्वागत होता है। बड़ा ही शुभ था। सिया और राम घर को आने वाले थे। उनके ही स्वागत में अयोध्या जन मतवाले थे। सभी ने मिलकर दीयों की भव्य सी माला जला ली थी।
खुशी मनाई थी सबने, उस दिन शुभ दिवाली थी। Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the students that are involving our class. Now, today you see only a few of our students that are involving our program, but actually we have over 50 to 60 students, and these are the committed 24 students along with their families. We're here for the last few months, every Friday, every Sunday, practicing to make this production. I'm sure you must realize many of you are your children up here, it's the mic. And I'm sure you may realize the challenges it is working with little people, big people, any people of this age. So I want you to give a big round of applause once again to and to honor all of our young people, we have a very special certificate for them, and I'd like to ask Panisha. So today, as I said, these are just a few of our students. These are just of our students, and this play has brought on so much effort and hard work from so many people, not just our young people, but our parents as well, who were very committed to this project. Next year, I'm hoping that when we do Ram Leela, we will have 50 kids on the stage, or 100 kids on the stage. Today we had students playing multiple roles. They were demons, they were kings, they were queens, they were warriors, they played it all. So they were very multi-talented actors and actresses, and they did a fantastic job. And today I want to take the time to thank our director, Jay Babasar. Jay, can you stand, please? And also Mayank, Asha, and Kinjal Bakari. Where's Mayank and Kinjal? Coming out here. These are the production leads that they worked with their students. Come on out, come on out. Mayank. And Neha Babasar, who's also worked with our students and our costume designers. They are the ones that took on the challenge of working with our young people in our community, and without them this production wouldn't be possible. So they have the music produced in India and the dialogue put together, but they also directed our young people. So let's give them a big applause, please. Now, behind the scenes, you'll see, if you are regular to Ramanda, you'll notice that this stage doesn't look like it did a couple months ago. This stage was actually put together.
So as I said, this stage didn't look this way before. We have a team of people, but specifically two people that I want to mention today, and that is Uncle Ramesh Harpal and Navin Prasad. Where's Uncle Ramesh and Navin? Let's give them a big round of applause, please. Now, Ram Mandir does not have a stage with back curtains and whatnot, and they actually went out and actually bought the cloth, got it stitched, did all of the stage. We extended our stage. They put up projectors, they put up audio visual, they did literally everything. Everything was done in-house. So let's give Uncle Ramesh and Navin a big round of applause. Uncle Ramesh is over there. Where's Navin? And Navin's kids are also involved in the play. And also we have so many other people. We have Uncle Bim Ramnath and his team who took care of extending the stage. We actually had to build out a new stage. We had to make it larger to accommodate all of our children. We have our admin team, Auntie Manmeet and Vedanshi ji, and Auntie Taras, Auntie Sanita, and our Sheridan College volunteers, Sudhi, Praneet, Agni, and Tejinder. Now, if you don't know, Ram Mandir, hidden behind these two side doors here is a lot of stuff. Like when I say stuff, I mean like it's bursting with stuff. So we had to empty out these two side areas. We had to do a major clean out underneath our stage. A lot of that involved a lot of manpower and resources. And our team of volunteers, our leads here at Ram Mandir were involved in that. We also have our team that was involved in packaging food today, led by Auntie Tara, Auntie Sanita, and so many other volunteers. Let's give them a big round of applause, please. Now, Lord Rama was really blessing us because the weather was beautiful, so you had to have your dinner, an opportunity to sit outside and enjoy the beautiful summer weather and dine outside. And then, of course, our chef, Uncle Narayan Das. Let's give him a big round of applause, please. And of course, the team of volunteers who put our food together. And there's so many more individuals. I hope I'm not forgetting people. And of course, our decorating team. You'll see beautiful decorations have been put up for our anniversary celebration. And we also have our team by Uncle Mush, Uncle Ramesh, Prasad, Uncle Rakesh, Suraj. So many people were involved in setting up outside our tents today, getting our mandir ready, clean, tidy, looking beautiful, and ready for our 25th anniversary celebration. So let's give all of our volunteers and hardworking members a big round of applause. But at this time, we'd like to appreciate our young people, because without them, this production wouldn't be possible. So I'm going to say the names, and I'm going to have the students can step up once I say the names. So Nikhil Prasad, coming up, and let's give him a big round of applause, please. Nikhil, stay here. Come stay here. Stand right there. Okay, next we have Amaya Shirwal. Give her a big round of applause, please. Turn and look at the audience. And then we have Brian Shirwal. Thank you. Give him a very round of applause. Rashan Shulal. I'm saying it incorrectly. Shulal. Let's give him a big round of applause. Anaya Kumar. Shayan Balram. Yunay Naran. Yasna Usman. Let's give her a big round of applause. Nikhil Prasad, our next Nikhil. Big Nikhil. And then we have Nikhil Prasad. Did he get this already? Nikhil, you got yours, a little one. Okay, Arya. Let's give her a big round of applause. Shreya Sharma. Shreya was our Sita. Let's give her a big round of applause, please. And this is Shreya's first time performing with Ram Mandir. And then we have, oh my God, Rose Prasad. Let's give Rose a big round of applause. Rose played multiple roles today. And we have Saharsh Patel. Let's give him a big round of applause. He was our Hanuman. And we have Om. Let's welcome Om, please. Give him a big round of applause. Vayu. Where's Vayu? Come on up, Vayu. Give Vayu a big round of applause, please. We have Param.
Give Padma a big round of applause, please. Leherni. Leherni played the doctor, and she was multiple roles as well. Let's give her a big round of applause. And Janil. Janil was our Lakshman. Let's give him a big round of applause, please. Then we have Nimi. Where is Nimi? Come on down, Nimi. Nimi was one of our many warriors and played multiple roles as well. Sita. Then we have EJ. EJ was our Ram. Come on down, Ram. And then we had Soresh. Soresh was our Ravan. Let's give him a big round of applause. And then we had Satvik. Satvik, where's Satvik? Also played multiple roles today. Come on down, Satvik. Ladies and gentlemen, the cast of Ram Leela. And Arjun. Did I miss Arjun? Where is Arjun? Come on down, Arjun. Ladies and gentlemen, as I said, without these young people, and I want to tell you a little bit, our young people have only had a couple months to practice. Furthermore, some of them are the shyest people, the shyest little kids we've ever met. And so it was very difficult for some of them. They really had to act. And so they did a fabulous job, and it took a little bit of twisting arms, but they hung in there and they stood with it and they played their role well. So we want to appreciate all of them today, and they all have been given a wonderful gift bag donated by Interior Ram, Dayal, and Jasmine to celebrate their success. So let's give them a big round of applause once again. So ladies and gentlemen, at this time I'd like to pass the mic over to Pandit Sharma, and I want to ask all of our young people to just stand right there for 1 minute. Listen, how many of you have ever acted on the play? Put your hands up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tell me, do you know what it takes to be on the stage? Now give these people a round of applause. And by the way, they're not only multi-talented, they play many roles. One of them filling in for 5 different, as Raja Dashrath, or the warrior, king, queen. They're doing all of these and changing. Did you see the change of costume going on back and forth there? They were well coordinated. These are, how old is the youngest? 7? You're 7? Stand up, please. Does she look like 7? No, you can get away with 5. Okay, from 7 and up, and they did such a wonderful job. Putting something like this together was not intended to present professionalism, was to present simplicity and serenity and devotion. And I think you can see that it's there in their faces. Our microphone, you need to cough with it once in a while. It's there in their faces and all of the dedication. These children have learned about Ram Charitmanas with the Katha of Prabhu Ram by participating in the play. So there were 2 purposes. Not only to get them on stage, but not only to get them on stage, Ramesh, you're fired. Check 1, 2, 3. No, I forgot what I was saying. That's such serenity, such devotion, such dedication, but it was 2 purposes. To get them to learn Ram Charitmanas. Now they have lived the story, they've acted the part, so they know the Katha. Hopefully they will go beyond that to read it and to listen to it and to get the values from the Katha. So we have committed that we will do Ram Leela every year. And maybe many of these children will come back and some of you will join us. We are going to continue to do this, that becomes a regular. This is Ram Mandir, so Ram Leela must be done annually and it will be done every year in the anniversary of Ram Mandir. So we thank you all for your attention today. I want to extend our special thanks to Bap Swami Navai representative, Triveni Mandir representative, and Vishnu Mandir representative, the Devi Mandir representative,
and that Maharajah Mandir representative, and of course all the other Mandirs that are represented here, and all of you for being here. Thank you, God bless all of you. Om Jai Sri Ram. Bolo. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram. Now I want to say one thing. I've seen Ram Katha presented many times by many actors, and I've never seen humble looking people. A nicer, more handsome Rama, but more than that, Ravan was such a good looking fellow. And not because he had no anger, no crowd, no anger. He was the nicest, gentlest Ravan you could see. So let's give the other character. And the queens. These queens were dynamite. You know, they were so cute. Where are the queens? Stand up, please. Queens. All the queens, come on, stand up, queens. Give them a big hand, all the queens. Now the Hanuman. Where are you? Come on, stand up. Very good. Everybody. Now, when Ravan was actually killing the people, I thought he was having fun with them. He said, I love you guys. I love you. So we have seen the different personality presenting, but the moral of the Katha, I hope you will take with you. And that is the essence of Ramcharitmanas. The moral is what we must appreciate and understand. It doesn't matter who are the actors on stage, by the way, we are the actors and actresses on the stage of life. These are the simplistic presentation of the profound philosophy of Ramcharitmanas. Thank you. Enjoy the rest of the evening. I don't know what Indira has planned for you, but let's give them all a big hand, please. I just also want to make mention to our parents. Our parents, because of you, your children are here today performing, and many of our parents were volunteering today, so let's give a big round of applause to our parents. And as Dad said on my final note, many of these young people up here did not know the story of Ram Leela. As a matter of fact, many of our generation do not know the story of Ram Leela. When we were younger, we watched it on the old videos, on ZTV or whatever it was, on the old VHS that we had. Or you heard the stories, if you were brought up in the old country, you heard your parents tell you that story. They don't hear those stories anymore. They don't see those stories. They're not watching it on TV. They're not watching it. That's not their choice of watching when they go onto YouTube. They're not watching Ramayana, I'll tell you that. So in order for these children to understand more, they had an opportunity to live it. So I'm really, really proud of all of these young people, and I can tell you that many of the parents here felt that their children were very blessed, that it was a blessing for them to be a part of this Ram Leela production. And everyone did an amazing job, and I hope that they leave here today feeling proud of everything that they've done, because you truly are wonderful actors, and you've done something that maybe you've never done before. So ladies and gentlemen, once again, our young people, give them a big round of applause, please. Now, the one thing that I love about this Ram Leela, amongst other things, that it was 1 hour. You know, you watch an Indian movie, nobody wants to watch a Bollywood anymore because it's 2.5 hours, 3 hours. We did it in 1 hour, people. 1 hour. And you enjoyed it and you watched the whole story from end to end. And it's so early outside. So beautiful. Enjoy the day. Socialize with friends and family. And please come and join us on Sunday morning for a regular service. But of course, Sunday evening, our Ramayana begins, our Ramayana Yajna. And it goes on until July 6th to July 12th. Please come and join us with our families. We'll be doing some beautiful, beautiful katha during that time, and doing some special presentations to celebrate the 25th anniversary. As well, our Bhajan Simmelan is July 26th, and we're inviting you to come out and join us in a full day of Bhajan singing that is joined by our kirtans from around the GTA and across Ontario. So don't miss out on those events. And once again, Jai Shri Ram! Thank you very much. Namaste, Jai Shri Ram, and have a wonderful evening. Thank you. Parents, don't go home without your children. Okay? So they're going to take a minute